आप सभी का स्वागत है। You're watching Legally Speaking and this is Himadri Bansal. Today, today is our last video of Industrial Relations Code. तो इसमें मैं layout, retrenchment and closure, which is the chapter 9 of IRC करने वाली हूँ. And before starting this, I want to say कि it has been a pleasure starting this project and I've been loving it so much and I wish to receive more and more support and love from you guys. I'm sure it's gonna reach the right audience. Okay, manifesting it right here and right now because I heard that it works. The next act which is going to come on my channel is Companies Act. क्योंकि ये वाला एक्ट हैज बीन मेजरली प्रोसीजरल और इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं था, ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं था बिकॉज इट्स बेसिकली प्रोसीजरल कंप्लायंस जो आपको करनी है. दैट्स व्हाट IRC is majorly about. Next act is going to be companies law, where I have the liberty to actually explain something with the help of flowcharts, with the help of visual aids, with the help of examples and case laws and stuff like that. And I really look forward to doing that. ठीक है, but till then आज lay off retrenchment and closure देखेंगे. ठीक है, अब to understand this better, ठीक है, you need to have a few things in your mind which are clear. So the two ideas which are central to this chapter, they are, first is layoff. Layoff क्या होता है और retrenchment क्या होता है. ठीक है, the aim of this channel is to start from the basics. ठीक है, basics अगर आपके clear है, अगर आपको headings पता है, अगर आपको ये पता है कि what is the concept all about, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शीट लिखने से आपको कोई नहीं रुक सकता. So basics मेरे को खुद clear करने बहुत पसंद है, इस वजह से मुझे clear करवाने भी बहुत पसंद है. What do you mean by layoff? ध्यान से सुनना. Layoff means temporary cessation of work by an employer with no fault of employee. ठीक है, it can be due to reasons such as coal shortage, power cut, etc. This is layoff. What is retrenchment? Retrenchment refers to permanent cessation of work by an employer. It includes each and every reason other than the reason of superannuation. Superannuation मतलब retirement and punishment. इन दोनों reasons के अलावा retrenchment. ठीक है, इतना clear हो जाएगा. Okay, now central theme which helps the worker get compensation. Get मत लिखना पेपर में, receive लिखना है. It looks much formal. Base is based on the idea of continuous service. ठीक है, we're gonna learn about it more अभी ऊपर. ठीक है, but continuous service से आप इतना समझ लीजिए that it is uninterrupted service, and there are some conditions where interruptions are also deemed as continuous service. We'll learn about it more. इतना सब कुछ clear करने के बाद let's just start giving this a read. This section 65, it basically says कि कौन सी establishment excluded है from sections of 67 to 69. सबसे पहली small establishment जिसमें 50 workers से कम है on average per working day and in the preceding month are excluded. इनको हटा दिया जाता है. Specific nature जो seasonal character की है where work is performed only intermittently is or are also excluded. अब अगर आप character के ऊपर final decision नहीं कर पा रहे, that means seasonal है या फिर इंटरमिटेंट है, इसके ऊपर आप एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर पा रहे तो अप्रोप्रिएट का गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल डिसीजन माना जाएगा. चलो, अब यहाँ से शुरू होता है असली काम. सेक्शन 66 बताता है कि कॉन्टिन्यूअस सर्विस क्या होती है. Continuous service, first and foremost, is essential for determining a worker's eligibility for layoff and retrenchment benefit. Continuous service define करेगा. Continuous service means uninterrupted service, including service. अच्छा, interrupted by अगर तुम्हारी authorized leave है, sickness है, accident है, legal strike, legal lockout या फिर cessation of work not due to workers fault. इन सब situations के अंदर
तुम्हारी कॉन्टिन्यूअस सर्विस मानी जाएगी. ओके, ऑलराइट. Deemed continuous service. Even if a worker hasn't worked continuously for 1 year or 6 months, they are deemed. Deemed मतलब माना जाएगा. ऐसा माना जाएगा कि वो continuous service है, to be in continuous service if they meet the minimum working days. 1 साल के लिए तुम्हारी deemed continuous service मानी जाएगी if you have worked at least 190 days below ground. अगर तुम underground mine में काम करते हो तो 190 days is the criteria for you, or otherwise 240 days in the preceding 12 months, and for 6 months if they have worked for 90 days, again underground criteria, and 120 days in the preceding 6 months. तो ये माना जाएगा कि तुम्हारी 1 साल की डीम्ड कॉन्टिन्यूअस सर्विस है, इस वाले केस में 6 मंथ्स की डीम्ड कॉन्टिन्यूअस सर्विस है. ओके, कौन कौन से दिन हम माने जाएंगे कि हमने काम किया है? Which days are going to be counted as worked? Days included in the actually worked count are वो दिन जिस दिन वर्कर ने लेड ऑफ कर दिया है, डेज द वर्कर वाज लेड ऑफ अंडर अग्रीमेंट और लॉ, डेज ऑफ फुल वेज लीव ऑन द प्रीवियस ईयर, डेज ऑफ एब्सेंस ड्यू टू परमानेंट डिसेबलमेंट कॉज्ड बाय एन एम्प्लॉयमेंट एक्सीडेंट, एंड डेज ऑफ मैटरनिटी लीव. ओके, नाउ कॉम्पनसेशन. राइट टू ले ऑफ कॉम्पनसेशन. किन किन सर्कमस्टांसेस में आपको ले ऑफ का कॉम्पनसेशन मिलेगा? ले ऑफ आपको आई होप समझ आ गया हो, हमने पहले क्लियर कर लिया है क्या होता है. अ वर्कर एक्सक्लूडिंग बादली और कैजुअल. बादली मतलब सब्स्टिट्यूट वर्कर, ठीक है, सब्स्टिट्यूट वर्कर जो बाद में परमानेंट हो जाता है उसको बादली बोलते हैं. अ वर्कर whose name is on the muster roll and has completed 1 year of continuous service. 1 year, 1 साल की उसने continuous service complete कर रखी है, then he is entitled to compensation for all laid off days. Compensation rate रहेगा 50% of the total basic wages and dearness allowance that would have been payable. Okay, agar if a worker is laid off for more than 45 days in any 12 months, then he is not liable for compensation after the first 45 days. मतलब only for first 45 days he is liable for compensation if there exists an agreement to that effect. मतलब अगर अग्रीमेंट नहीं है देन 45 डेज के बाद भी उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा, लेकिन अगर अग्रीमेंट है तो 45 डेज के बाद कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा. एम्प्लॉयर चाहे तो उसको रिट्रेंच भी कर सकता है वर्कर को एनी टाइम आफ्टर द फर्स्ट 45 डेज आर ले ऑफ. मतलब अगर आपने किसी को 45 डेज तक ले ऑफ करके रखा है ना, तो आपको कॉम्पनसेशन तो देना ही देना पड़ेगा. there is no denying it. आप कॉम्पनसेशन डिनाई नहीं कर सकते. ठीक है, मूविंग ऑन. बादली वर्कर इज सब्स्टिट्यूट वर्कर, आपको देख लीजिएगा. नेक्स्ट, एम्प्लॉयर की क्या ऑब्लिगेशन होती है ले ऑफ के दौरान? इवन व्हेन द वर्कर्स आर लेड ऑफ, एम्प्लॉयर को एक मस्टर रोल मेंटेन करना पड़ता है. ही मस्ट अलाउ एंट्रीज मेड बाय द वर्कर हु प्रेजेंट देमसेल्फ फॉर वर्क अपॉइंटेड टाइम. मीन इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आई वोंट वेस्ट टाइम हियर. अच्छा, किन किन केसेस में ले ऑफ डिनाई किया जा सकता है? सबसे पहला, रिफ्यूजल ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट. अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक जगह से ले ऑफ करके दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी है और आपने उसको रिफ्यूज कर दिया है, इफ यू हैव रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट इन द सेम एस्टैब्लिशमेंट और अ डिफरेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेम एम्प्लॉयर विद इन एन 8 किलोमीटर रेडियस. ये याद रखिएगा, 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर प्रोवाइड ऑल्टरनेट जॉब रिक्वायर्स नो स्पेशल स्किल्स एंड ऑफर्स द सेम वेजेस. ठीक है, ये कुछ कंडीशंस है जो अगर फुलफिल करती है और अगर आपने उसको रिफ्यूज कर दिया है देन यू आर नॉट लायबल फॉर ले ऑफ कॉम्पनसेशन. फर्स्ट. Second, failure to report. If you fail to present yourself for work at the establishment at the appointed time during normal working hours at least once a day, layoff is due to a strike or slowing down of production by workers in another part. So basically, refusal to accept, failure to report and strike. ये 3 कंडीशंस में आपका ले ऑफ का कॉम्पनसेशन कैंसिल किया जा सकता है. किन किन कंडीशन से आपका रिट्रेंचमेंट हो सकता है? कंडीशंस प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट. एक एम्प्लॉयर cannot retrench a worker within 1 year of continuous service unless he has these 3 conditions are met. Retrench का मतलब आपको पता है retrenchment क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो. एक एम्प्लॉयर रिट्रेंच नहीं कर सकता इन 3 कंडीशंस को फुलफिल किए बिना. आइए जाने वो 3 कंडीशंस कौन सी हैं. अगर उसने नोटिस पे किया है या फिर नोटिस पे इन ल्यू मतलब इंस्टेड. ठीक है, तो इसका मतलब नोटिस और पेमेंट इन instead of notice. A worker is given 1 month's written notice stating the reasons of retrenchment or paid wages in lieu of such notice. ठीक है, या तो आप उसको पैसे दे दीजिए नोटिस के बदले में या फिर आप उसको 1 महीने का एडवांस रिटर्न नोटिस दीजिए कि क्या क्या रीजन है आपके रिट्रेंचमेंट के लिए. कॉम्पनसेशन. वर्कर को कॉम्पनसेशन आपको देना पड़ेगा इक्वल टू 15 डेज ऑफ एवरेज पे
or such days as is notified for every completed year of continuous service. Okay. Notice is served to the appropriate government in the prescribed manner. Notice सर्व करना पड़ेगा. ये 3 कंडीशंस है जो उसको फुलफिल करनी पड़ेगी बिफोर रिट्रेंचमेंट. प्रोसीजर क्या रहेगा रिट्रेंचमेंट का? कोई भी ऐसा इंसान जो अगर कोई भी ऐसा वर्कर इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी, द एम्प्लॉयर मस्ट ऑर्डिनरली रिट्रेंच द वर्कर हु वाज द लास्ट पर्सन टू बी एम्प्लॉयड. समझ गए? अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में लास्ट पर्सन है तो यू वुड बी द फर्स्ट टू गो इन द केसेस ऑफ रिट्रेंचमेंट. ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक जनरल रूल है and the employer can decide to deviate from this rule, but if he does, he must record the reasons for doing so. Moving on, रीएम्प्लॉयमेंट. अगर 1 साल के अंदर अंदर वो एम्प्लॉयर ये डिसाइड करता है कि उसको रीहायर करना है किसी को, तो ही हैज टू गिवन द अपॉर्चुनिटी टू द रिट्रेंच्ड वर्कर्स. मस्ट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द रिट्रेंच्ड वर्कर्स हु ऑफर देमसेल्व्स फॉर रीएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. Such retrenched workers shall have preference over other persons. Next, transfer of ownership. This section treats transfer of ownership or management as deemed retrenchment. अगर आपकी कंपनी में ओनरशिप बदल रही है, पहले कोई और मालिक था और अब कोई और मालिक है, या फिर मैनेजमेंट बदल रही है, तो वो ऐसे ही माना जाएगा जैसे रिट्रेंचमेंट हो रहा हो. ठीक है. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, एनी वर्कर विद 1 year ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस इज एंटाइटल्ड टू नोटिस एंड कॉम्पनसेशन. उसी तरीके से नोटिस और कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जिस तरीके से रिट्रेंचमेंट में मिलता है. ठीक है. इट इज डीम्ड रिट्रेंचमेंट does not apply if वर्कर की सर्विस इंटरप्ट नहीं हुई बाय द ट्रांसफर. अगर ओनरशिप के ट्रांसफर से वर्कर का कोई लेना देना नहीं है एंड हिज वर्क इज नॉट इंटरप्टेड, सेम कंडीशंस में उसका वर्क चल रहा है, उसको पे भी सेम मिल रही है, उसकी कंडीशंस भी सेम है, उसकी शिफ्ट भी सेम है, उसकी स्किल भी सेम है, तो फिर उसके काम पे कोई असर नहीं पड़ रहा है. इसका मतलब ये है कि डीम्ड रिट्रेंचमेंट की कंडीशंस इंपोज नहीं की जाएगी. ठीक है. न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस आर नॉट लेस फेवरेबल देन दोज बिफोर द ट्रांसफर. समझ आ गई है बात कि जो नई कंडीशंस है दे मस्ट बी इक्विवेलेंट. ठीक है. इक्विवेलेंट होनी चाहिए, पहले की जितनी ही फेवरेबल होनी चाहिए. न्यू employer is legally liable to pay future retrenchment compensation based on worker service being continuous. I hope there is no dispute in that. Next, notice of closure. This section mandates a prior notice to the government before closing an undertaking. Closure मतलब आपने अपनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को क्लोज करने का फैसला ले लिया है. Obviously, as the name suggests, it is permanent in nature. Employer intending to close down an undertaking must serve a notice to the appropriate government. Notice must be served at least 60 days before the intended closure date. स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट है तो नोटिस रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करनी पड़ेगी. अगर लेस देन 50 वर्कर्स हैं तो आपको नोटिस नहीं भेजना. कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो भी आपको नोटिस नहीं भेजना. ठीक है. पावर टू वेव नोटिस. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे तो दे कैन ऑर्डर टू डायरेक्ट द 60-day नोटिस रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट. कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो गए थे जिसकी वजह से वो नोटिस नहीं भेज पाएंगे. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकती है. एक्सीडेंट होना चाहिए उसमें, डेथ ऑफ ए एम्प्लॉयर और एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस लाइक नेचुरल कैलेमिटीज. ये साफ साफ बताया गया है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कौन सी मानी जाएंगी. एक्सीडेंट, डेथ, extraordinary situations like natural calamities. So financial losses are not included. कि कंपनी में फाइनेंशियल लॉसेस हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस नहीं मानी गई है. सच लॉसेस व्हिच आई विल टॉक अबाउट इन द फ्यूचर, उनको अनअवॉइडेबल नहीं माना गया. ठीक है. कॉम्पनसेशन टू वर्कर इन केस ऑफ क्लोजर. अगर तुमने फैसला कर लिया है कि एज एन एम्प्लॉयर की तुम्हें अपनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट बंद करनी है तो तुम्हें किस तरीके का मॉनिटरी कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. जनरल एंटाइटलमेंट. एवरी वर्कर इन कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 1 year. मतलब 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस तुम्हारी होनी चाहिए. इमीडिएटली बिफोर द क्लोजर इज लायबल टू नोटिस एंड कॉम्पनसेशन एज इफ दे हैड बीन रिट्रेंच्ड. उसी तरीके से जैसे रिट्रेंच किए गए हैं. अगर क्लोजर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से हुआ है which is beyond the employer's control, compensation is capped at workers average pay for 3 months. उसकी एवरेज पे जितनी थी 3 महीने के लिए उसको सिर्फ उतना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा if it is due to unavoidable circumstances. What is not unavoidable? Closure is not deemed unavoidable merely because of financial difficulties. इसी के बारे में मैं बात कर रही थी जब मैंने आपको बताया था ना, मैं बताऊंगी एक्सेट्रा क्या होता है. ये रहा एक्सेट्रा. If it is not because of financial difficulties, losses, stock accumulation, expiry of lease or license or exhaustion of minerals in mining, ये सारी situations को हम unavoidable नहीं मानेंगे. Okay.
Then exception to compensation in mining operations, specific exception closed due to mineral exhaustion. Worker is not entitled to notice or compensation if the employer fulfills three conditions. ये तीन conditions अगर उसने fulfill किया, अगर उसको alternative employment दे दिए, इधर 20 किलोमीटर का radius है, unlike before where it was 8 kilometers. Same remuneration and terms as before the closure. Worker service has not been interrupted by alternative employment. New employer is legally liable to pay full retrenchment. Self-explanatory. I won't waste time here. And then comes the effect of this chapter on other laws. ये भी there's not much to tell. Okay, let's move on. I'm just checking if I'm not missing something important. ये देख लो एक बार, सेक्शन 75 में देख लो, कह रहे हैं कि अगर सबसेक्शन 4 कहते हैं कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन अंडरटेकिंग है और उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, दैट इज व्हाई दे हैव क्लोज्ड सच प्रोजेक्ट विद इन 2 years ऑफ सेटअप, नो कंपनसेशन इज पेबल. लेकिन अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ है विद इन 2 years, देन वर्कर इज एंटाइटल्ड टू नोटिस एंड कंपनसेशन अंडर सेक्शन 70 फॉर कंटीन्यूअस सर्विस एक्सीडिंग 6 months. इधर 6 months है, पहले 1 year थी एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में 6 months. मूविंग ऑन, केसेस, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट. ले ऑफ के दो केसेस हम देखेंगे. कैरबेटा स्टेट कोटागिरी वर्सेस राजा मनिकम. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ले ऑफ जो होता है भाई वो एम्प्लॉयर करता है, और इसी रीजंस की वजह से करता है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में बताया गया है, सच एज शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर फेलियर, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक. इट इज क्लैरिफाइड, ले ऑफ इज नॉट अ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस. टर्मिनेशन नहीं है, ओनली अ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ वर्क. एंड इसी कारण, just because it's a temporary cessation of work and no fault of employee is present, it is confirmed that compensation is payable. ठीक है. मूविंग ऑन, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल कंपनी वर्सेस इट्स वर्कमैन. बर्डन ऑफ प्रूफ एम्प्लॉयर के ऊपर रहेगा ये प्रूफ करने के लिए कि भाई सर्कमस्टांसेस ही ऐसे थे कि उसको ले ऑफ करना पड़ा. सर्कमस्टांसेस वर वैलिड, कंडीशन स्पेसिफाइड फॉर वैलिड ले ऑफ, genuinely existed, thereby justifying the layoff and compensation payment. Retrenchment की बात कर लेते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस एन सुंदरामनी. ये दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल केसेस इन डिफाइनिंग रिट्रेंचमेंट. सुप्रीम कोर्ट में इसमें इतनी वाइड इंटरप्रिटेशन दी थी रिट्रेंचमेंट को, और बोला था कि सारी की सारी चीजें रिट्रेंचमेंट में आ जाएंगी सिवाय दो चीजों के, विच इज पनिशमेंट और वॉलंटरी रिटायरमेंट. इन दोनों चीजों के अलावा, other than these two things, everything will constitute for a retrenchment. Ruling bought nearly all terminations, including termination under an automatic clause in a contract or failure to secure extension under the purview of retrenchment. Obligations, thus obligating employers to comply with the notice and compensation requirements. Then again, workmen of Subong Tea Estate versus Subong Tea Estate. इसमें बोला कि last come first go वाला जो rule है, it is mandatory in nature, and if you fail to abide by this law, you need to provide the reasons in writing. And if you fail to do the reasons in writing, then failure to adhere to the rule record reasons makes the retrenchment illegal. Retrenchment खुद ब खुद illegal हो जाएगा. क्लोजर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला एम्प्लॉयर का राइट होता है कि वो अपनी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट को क्लोज कर सके अंडर आर्टिकल 19(1)(g), क्योंकि आपको राइट है टू कैरी ऑन ट्रेड और बिजनेस, तो आपको ये भी राइट है टू शट इट ऑफ. बट कोर्ट ने ये भी बोला कि स्टेट ऑल्सो हैज द पावर टू रेगुलेट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच क्लोजर, thereby extending a compensation liability and notice requirement, okay, to protect the right and interest of workers. समझ आ जानी चाहिए आपको ये बात. नहीं आई तो प्लीज रिवाइंड करिए, और फिर भी नहीं आई तो प्लीज कमेंट करिए. ठीक है. ओडिशा टेक्सटाइल एंड स्टील लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा. इसमें बोला कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस का जो क्लॉज है उसमें हम मानेंगे कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, financial losses and accumulation of undistributed stock are not considered unavoidable circumstances and beyond employer's control. Therefore, they simply cannot claim 3-month compensation cap. They must pay full retrenchment compensation unless a genuine or extraordinary factor has caused the closure. This brings me to the end of this series. Thank you so much for watching. Okay, bye-bye. I'll see you until next time. Please like, share and subscribe.